काम है, तुम्हारा काम नहीं है. Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of Maxaf Show on Sports Trend. Today we are gonna talk about आज हमने जो एपिसोड थोड़ा लेट स्टार्ट करने का पर्पस ये है कि 3 दिन से हम लोग थोड़ा सा मैच से पहले स्टार्ट बात करते थे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो पहला टेस्ट मैच चल रहा है, लेकिन आज जो है हम चौथे दिन में हमने जानबूझ के थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया ताकि थोड़ा सा हम देखें कि तीसरे दिन क्या हुआ और 4 डे अभी क्या चल रहा है, ताकि थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें हों और हम लोगों के कमेंट्स भी लाइव लें और कैसी विकेट बिहेव कर रही है. तो आप हमें लाइव देख सकते हैं स्पोर्ट्स ट्रेंड के ऊपर, फेसबुक के पेज के ऊपर, यूट्यूब के पेज के ऊपर और स्पोर्ट्स ट्रेंड के आप टीवी चैनल के ऊपर जो IPTV पे आता है. तो प्लीज ट्यून इन करें और अपने सवालात और जवाबात आप सब कुछ देख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर. मैं अपने would like to introduce all of my guests for today's panel one by one. कुछ आज हमारे साथ न्यू चेहरे भी हैं, तो I would like to start with a new face with Saad. Saad, Assalamu alaikum. Thanks for having me. Hello to everyone. Yes, welcome. So Saad, can you please introduce yourself, like from where you're from, and if you play cricket, which club do you represent in Toronto? Yeah, my name is Saad Khan. I was born in Toronto, Canada. I played cricket in Dubai for the under-16 and I also played under-19 level there. And I've recently come back here to Mississauga and I've just started playing club cricket. Okay, that's good. And then I would also like to invite NAsar as well. NAsar, welcome to the show. Assalamualaikum. Thank you for having me. I was born in Pakistan, Karachi, but I've moved around quite a bit. So I actually played a lot of cricket in Dubai as well as Saad. I played under-19 there as well, and quite a lot of club cricket. So I played at the ICC Academy, captained them. So it was a lot of fun. But now I've just moved back to Canada as well. So I'm playing cricket here as well. Sure. और मेरे साथ मेरे दो मुस्तकिल पैनल जो हैं, एनालिस्ट पैनल दोस्त और मेरे काफी रूए रवा हैं इस शो के, सज्जाद भाई और सुल्तान भाई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सही. और हम लोगों के जो हैं, हम जिनके बैनर तले हम सब ये शो कर रहे हैं और अपने अपने दिल की भड़ासें जो हैं व्हाट्सएप क्रिकेट से सामने वाली क्रिकेट लेकर आ रहे हैं. फर्रुख भाई, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू वेरी मच यार. जबरदस्त, आज प्रोफेशनल होते जा रहे हो मगर तुम काफी. नया शो चैनल यहाँ खड़ा कर लो अपना भाई, नजर रखो लड़के के ऊपर. सही. कल मैंने बेहतरीन इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दिया, आज बेहतरीन सलीस उर्दू में इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, तो दोनों जगह कवर किया इसको. आज मैं हमेशा वैसे उर्दू में ही देता हूँ, लेकिन when I saw Saad, so I was like, okay, let me start with English as well, and because I was taking it. नहीं, साथ को उर्दू आती है. साथ को उर्दू आती है. चलें उर्दू भी चेक कर लेंगे. मैं शो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूं कि कल क्या हुआ, फिर आप लोगों की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. देन आई विल आस्क साद एंड नसर टू स्टार्ट फर्स्ट एंड देन आप लोग. तो कल जब पाकिस्तान ने दूसरे दिन जब स्टार्ट किया तो पाकिस्तान काफी मतलब डॉजी सिचुएशन में था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई मीन फहीम अशरफ एंड रिजवान played very well and half of the test match, I think in my opinion they won it like by passing the par score of 231 जो कि उनका फॉलो ऑन स्कोर था. फहीम अशरफ played well, he scored I think 89 or 91. Thank you. And then I think Rizwan unlucky, but as we can expect anything from New Zealand fielders. That was, everyone is saying that Rizwan was unlucky, but I think that was a clean hit that they know like they are doing it on every other day. So I would like to start my show with Saad. Saad, what do you think about third day and whatever right now in 4 day? What do you think? First, give some headlight on third day. I think the day was saved by Fahim and Rizwan, both of them a very important partnership. I think when Fahim came in, we were around 80 for 6, and really we saw that Rizwan was playing well, but no one else was at the other end trying to stay at the wicket. Fawad Alam stayed for 40 balls, but we also saw Ahmed stay for 100 balls. But there was not much going on. We were just staying in the wicket, not scoring runs. But Fahim and Rizwan showed that if you stay positive, you can score runs on this pitch. And as we saw, Fahim scored 90 off 135, 140 odd, and Rizwan also had a good strike rate for a 71. And because of that, they avoided the follow-on, which forced New Zealand to bat again. And even though they're in a strong position, I think it shows that
we could stay in the wicket. If Pakistan is most likely they're gonna bat again tonight. So I think even if they have to bat 130 overs, we have a good possibility if we stay in and apply ourselves that there's a possibility for a draw in this test match. Okay. Yes. Thanks, Saad. Very काफी like you like highlight किया तुमने काफी सारी चीजों को. Yes, Nasser. What do you think about third day game? And then right now lunch as well. I think lunch is already being taken over there. So what do you think? I think yesterday जब हमने पाकिस्तान को देखा, we saw them play. It resounded very old. मतलब, it was not like we were trying to bat. We were just trying to block. Okay, almost 40 overs, we had 30 runs. It wasn't. I don't know what it was, the coaching or what it was, what the plan was actually. Because when you come out to bat, obviously you will want to see off the new ball. You had your night watchman play 55 balls. After that, you should be pretty set. The ball was not too much was having in the wicket. We just didn't look like we wanted to beat even the 15-yard circle, the 30-yard circle, if there ever was one, which is not in test. But we didn't even look to attack. We were just intent with, okay, we'll block. What Williamson did on the first day was a different thing. Williamson did end up scoring runs. In the beginning, he was very patient. But then as the game went on, he got his ball, he put it away. We were not doing that. You see Abid playing 100 balls for 20 runs. Abid Ali does not do that. In first class, Abid Ali in test matches, until today, until this test match, even Shan Masood, terrible way to get out down the leg side. But even throughout, it was just that we did not look to bat. We were just looking for a draw from the third day already. We wanted to block it out already. And then going on, yeah, Rizwan, when he came in, there was some intent. Him and Fawad Alam, when they came in, they ran a few quick doubles. Risky a bit, but they're quick doubles. And then Fawad got out. Yeah, he did. He took a terrible delivery to go for a pull. But then Fahim also tried to play attacking. They tried to keep the score ticking. If at one moment it looked like we play 90 overs, score 120 runs, at least we had some intent, something that we were able to score some runs. Now, today so far, it looks in New Zealand are batting, Tom Blunder especially. He's seeing the ball. It's not doing anything. Just hit the ball. Play in the line, not just look to block, but also play where the ball needs to be played. Pakistan's bowlers are, I'm sorry, but Mohammad Abbas, he's been great, but you have to realize as a captain, Rizwan, you've got to come up to the stumps. He's not threatening over 125. He's reaching 120 sometimes. And also your first 3-4 overs, you had 3 chances down in the slips. You didn't carry. You realize that it's not like Latham's playing soft hands. Latham's driving the ball and it's still not carrying to you. You have to realize you have to come up. At least your second and third slip. Maybe your first slip can stay back a bit. But it's not as if he was playing soft hands like Pujara does or someone, or Williamson, which doesn't carry. He was looking to drive, and it wasn't carrying. And you saw the ball go up after the bat and it dipped. So that means there has to be something, especially this goes to your keeper who has to set up your field. But I don't see, if they apply themselves, maybe they can draw the match. But it's a very straightforward wicket at that point. ओके सज्जाद भाई, कल के ऊपर तो आप जरा थोड़ी देर के बाद बात कीजिएगा. अभी बताएं, लंच के ऊपर 98 बना चुके हैं वो लोग, और मुझे तो इंटेंट लग रही है कि आई थिंक मेरी कल अली से ऑफ टॉपिक में बात हो रही थी. अली, मैं तुम्हें थोड़ी देर में लूंगा. मतलब अली कह रहा था कि लंच पे ये लोग मार दौड़ के लंच तक ये लोग इनिंग को कर देंगे और डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन अब मुझे लग रहा है टी पे डिक्लेयर करेंगे. क्या लगता है सज्जाद भाई, थोड़ा सा आज का बताएं कल से पहले. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. मुझे लग रहा है कि ये टी तक खेलेंगे और एग्रेसिव खेलेंगे. इस वक्त क्या लीड हो चुकी है? 400 के करीब हो चुकी है. नहीं 192 और नहीं मतलब ओवरऑल लीड 300 के करीब हो गया. कितनी होगी? जी ऑलमोस्ट 300. तो 400 से ऊपर वो करने की कोशिश करेंगे. दैट्स व्हाट आई थिंक. 400 की लीड टारगेट होगा उनका मिनिमम. सही है. चले सुल्तान भाई, क्या कहते हैं, कल का क्या हुआ? फिर अभी आज के ऊपर आइएगा थोड़ी देर के बाद. कल क्या समझते हैं? आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक था जो हमने कल बात कर रहे थे? देखिए, जिस तरह ये नसर और साद कह रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन. बहुत अच्छा आप दोनों ने पॉइंट्स दिए. और आपको ये जिस तरह नसर बता रहे थे, आप देखें अनटिल आपके कैप्टन और फहीम आए हैं खेलने के लिए, तब तक आपको एक डिफरेंट गेम नजर आई. और जैसे ही वो दोनों आए, एकदम गेम डिफरेंट हो गई. दे स्टार्टेड थिंकिंग सिंगल, रोटेशन शुरू हो गई, टाइट डबल शुरू हो गए. दैट इज अ पॉजिटिव इंटेंट, और उसी की वजह से आप फॉलो ऑन को ब्रेक कर सके.
और उससे पहले जो कुछ हुआ वो आपको पता है, एक पास हिस्ट्री की रिपीट हुआ वो कि आप ही कोलैप्स कर गई टॉप ऑर्डर, और सब ने ही टाइम लिया, कोई भी इस तरह नहीं है कि फौरन आउट हो गया आते ही, लेकिन दैट क्रेडिट गोज टू न्यूजीलैंड बॉलिंग एज वेल, दे केप्ट अटैकिंग यू एंड उसका उनको रिजल्ट्स मिले, और फहीम अशरफ द वे ही प्लेड, दैट इज समथिंग वेरी इम्प्रेसिव, आपको उसको क्रेडिट पूरा देना चाहिए, बहुत अच्छा खेला और फर्रुख भाई, बहुत ही टेक्निक के साथ खेला। जी भाई जी रिजवान के बारे में हम लोगों की राय एक ही है कि भाई रिजवान ब्रैडमैन का जो उनको आज क्या लगता है, कल क्या लगता है, कुछ कर पाए मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे? यार वो हमने देखो तमाम तर मुखालिफों के बावजूद हमने हमारा जो आज का टाइटल है, देखो हमने कहा है कि पाकिस्तान सेव बाय द लीस्ट फेवरेट्स। क्योंकि देखो मतलब ये होता है कि वो हाँ ठीक है, हम पसंद नहीं करते भाई उसको, उसकी वजूहत है, लेकिन टेस्ट में उसकी अपनी जगह है। कैप्टन भी है अभी और बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है, मुसलसल कर रहा है, कीपिंग भी बहुत अच्छी कर रहा है। तमाम बावजूद के बावजूद दोनों ने बहुत अच्छा खेला। सरफराज कह रहा हूँ खासतौर पे, इसने भाई रिजवान ने, हमारे कप्तान साहब ने बहुत अच्छा खेला। उन्होंने और बहुत सी बात की थी नसर या साद में से किसी एक ने कि पॉजिटिव खेला। देखो अगर पॉजिटिव खेले फवाद आलम, यार हमने इतनी दुआएं की, पता नहीं अपने लिए कभी इतनी दुआएं नहीं की जितनी उसके लिए। भाई कुछ करो तो सिंगल डबल रिजवान को मैं देख रहा था, शुरू में शॉट नहीं लग रही थी उससे, लेकिन ये कि वो सिंगल डबल निकाल रहा था। जब सिंगल डबल निकलती है ना तो सारे क्रिकेट खेलने वाले हो, ठीक है, तब आपको टेंशन होती है। अली फारूकी को अगर 5 चौके पड़ जाएंगे ना तो वो बहुत परेशान हो जाएगा, लेकिन उसको 4 चौके पड़ जाएंगे ना परेशान नहीं होगा, लेकिन उसको अगर 3 डबल लगातार पड़ गए ना तो वो कहेगा यार ये गड़बड़ हो रही है मेरी, क्योंकि चौके लगते हैं, स्लिप भी हो सकते हैं, लेकिन जो रन बनती है ना जब, तो फिर फील्डिंग जो है वो रैटल होती है थोड़ी सी। तो बहुत अच्छा खेला और इजी भी होता है उसके अंदर सारा। तो दैट वाज अ गुड पॉइंट फॉर देम। और बाकी चीजों और बात करते हैं अभी। चले मैं अली वो अरम साहब भाई बार बार पूछ रहे हैं, अरम भी पूछ रहा है कि फरूख भाई वेयर इज माय हुडी। यार भाई बिल्कुल मिलेगी, मैं ये प्रिंट नेशन वालों ने बड़ी मोहब्बत से हमें ये हुडी दी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंट नेशन आपका, यू नो फॉर देयर गुड्स। और बाकी लोग भी हैं, वो भी यार अपनी मोहब्बत के इजहार करें और हमें इस तरह की चीजें देते रहें, ताकि हम जो है वो मोहब्बत फैलाएं हमारे बाकी 8-9 लोगों के अंदर भी। तो चले मैं प्रिंट नेशन वालों का भी अभी व्हाट्सएप आया, उनका शुक्रिया आपका फरूख भाई, आप हम लोगों की तारीफ कर रहे हैं। मैं अली के ऊपर जाने से पहले मैं बता दूं कि फरूख भाई मेरे नहीं ख्याल के जीटीए में कोई ऐसा बैट्समैन है जो अली को 5 बॉल में 5 चौके मारे। यस अली, आप क्या कहेंगे कल के मैच के ऊपर? यार कल को तो मैं पहले बोलूंगा, कल जो एग्जैक्टली बात कही थी वो ऑलमोस्ट प्रूव हुई, सिवाय इसके कि मतलब थोड़े से रन से फॉलो ऑन बच गया, वरना वो होने वाला था, तो प्रेडिक्शन 100% करेक्ट हो जाती। लेकिन जो मैंने कल मेन बात की थी सबसे इम्पोर्टेंट वो ये थी कि मैंने कहा था कि सेशन विन करना है, सेशन बाय सेशन विन करना है। इन लोगों को हर सेशन को लेके चलेंगे कि यार इस सेशन को हमने विन करना है, फिर अगले सेशन पे। वो कल सिर्फ टॉप 5 के गिरने के बाद हुआ, ठीक है। टॉप 5 के गिरने से टॉप 5 जब बैटिंग कर रहे थे तो आप नोट करें 30 बॉलें 4 रन, 28 बॉलें 5 रन, ठीक है। थ्रू आउट अजहर अली, फवाद आलम और आपका आबिद अली, और ये इन सब का एग्जैक्टली ऐसा ही रहा। और वो क्यों थी? क्योंकि सब के सब सर्वाइव करना चाह रहे थे। मसला सबसे बड़ा एक और ये है कि सबके सब जो है ना वो अपनी टीम में जगह बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और अपनी टीम में जगह बनाने के लिए सबको है कि आज हम ज़्यादा विकेट पे सर्वाइव कर लें, क्योंकि सबको मतलब बात हुई है ना कि ये चीज़ें हम लोग जो बात करते हैं गेम के अंदर आके, वो हम बात करते हैं सिम्टम्स की, रूट कॉज की बात नहीं करते। रूट कॉज क्या है कि इतनी चेंजेस आती हैं टीम के अंदर कि जो प्लेयर है उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं अगला गेम खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा, तो वो अपने करंट गेम को में अपनी जगह बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहा होता है, और जिसकी वजह से इस ट्रेंड के साथ जो है वो आपकी टीम जो है ना वो कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता। और साइड नोट, हाँ मतलब अभी ये था कि सरप्राइजिंगली दोनों ने जो है बहुत अच्छी बैटिंग की, और मतलब गेम ऑलमोस्ट आपका, अगर गेम का चांस है ना ड्रॉ की तरफ, वो सिर्फ उनकी वजह से होगा। लेकिन चांस का ड्रॉ का चांस भी मुझे बहुत कम लग रहा है, मतलब आज से 10% चांस है ड्रॉ का, अनलेस के बहुत ही कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है ना वो सर्वाइवल हो जाए बैटिंग में। लेकिन ये लोग अभी, मेरी एंटिसिपेशन ये है कि न्यूजीलैंड इस वक्त एग्रेसिव क्रिकेट खेलेगा, 5-5.5 रन के एवरेज से बैटिंग करेगा, एटलीस्ट 150 रन बनाएगा। 400 1.5 दिन में नहीं बनते,
ठीक है। और अगर पाकिस्तान अप्रोच करेगा भी 400 दिन बनाने के लिए तो पाकिस्तान ऑल आउट हो जाएगा, तो उनको पता है। तो मैक्सिमम आई थिंक अभी से शायद घंटा और बैटिंग करेंगे, 1.25 घंटा। जैसे ही 410 टच करेगा ना, दे विल डिक्लेयर एंड देन पाकिस्तान विल विन टू बैट। और एकदम से क्या होगा, एक और लास्ट बात, एकदम से क्या होगा, एकदम से पीछे मूवमेंट शुरू हो जाएगी जैसी उनकी बॉलिंग आएगी वापस न्यूजीलैंड की। अभी तो बिल्कुल डेड हो चुकी है, एकदम से आएगी और बॉल ऐसी स्विंग होगी, ऐसी बनाना स्विंग करेगी, निप भी सब कुछ करेगी, और फिर जो है ना वो कल गेम का डन हो जाएगा। क्यों अली भाई, क्यों उधर पीर साहब बैठे हुए हैं या न्यूजीलैंड की तरफ? यार बात पता है क्या है, अब मैं आपको बताऊं, मैं तो खैर वीडियोस देखता था कि नेट प्रैक्टिस की वीडियो बड़ी देखता हूँ ना, कि कोहली की, रोहित शर्मा की, इवन जो भी वीडियोस आती रहती हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। यार पाकिस्तान के प्लेयर, सॉरी टू से, लेकिन इतने बदसूरत लगते हैं ना नेट में बैटिंग करते हुए। मतलब उनकी टेक्निक आप देखें ना, आप कहेंगे कि यार मतलब पाकिस्तान की 18 करोड़ की आवाम के अंदर के यही बंदे इनकी बेस्ट टेक्निक है? आई डोंट थिंक सो। नहीं, तो वो चीज मेरे लिए, मतलब मैं देखता हूँ क्योंकि आप एज अ बॉलर आप बैट्समैन की टेक्निक को देखते हैं क्योंकि उससे आप सीखते हैं, लेकिन हमारे बैट्समैन की टेक्निक ही इतनी नहीं दिखती कि आप बोल भी सकोगे। मतलब कभी शर्मिंदगी होती है कभी जो नेट में देखते हैं उनको बैटिंग करते हैं। नहीं, लेकिन आप न्यूजीलैंड जैसे को में देखें, वो हजरत दाऊद वाली कहानी वाली बात है ना कि 300 असली सिपाही सालार हो तो किसी को भी हरा सकते हैं। किसी को भी हरा सकते हैं। अभी तो गज़ा बदर के फरिश्तों की जरूरत है भाई। अच्छा, अली के पॉइंट को मैं लेके थोड़ा सा एक पॉइंट करना चाहता हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हम अपनी टेक्निक पे इम्प्रोवाइज नहीं करते। ये जैसे कि ब्लंटन को आप देखें कि अभी जब उसको शाहीन शाह राउंड द विकेट आके एंगल से बॉल कर रहा है, तो वो अपनी टेक्निक को काउंटर कर रहा है, वो ऑफ स्टंप से बाहर जाके खेल रहा था कि एलबी ना हो। तो ये भी इम्प्रोवाइजेशन भी चाहिए आपको। आप एक ही टेक्निक को लेके चल नहीं सकते, जब आपके साथ अटैक चेंज हो रहा है आपको भी उसके साथ एडजस्ट करना। और दिस इज बड़ा प्लेयर यही होता है कि वो सोच समझ के खेलता है और काउंटर अटैक उसके पास होना चाहिए। तो बहुत अच्छा पॉइंट है। Right. Sure. I have a question for Saad and NAsar. Fahim Ashraf played as an all-rounder. In last 3 days, I was always saying like, why we need an all-rounder, because he's like an all-rounder is supposed to be like take 2 or 3 wickets as well and then putting a bat on it. What do you guys think, that was that decision justified, or he justified like fortunately or by luck? I'm talking about Fahim Ashraf. Yes, Saad. Yeah, I think it was the way he's performed not only in the Test match but also in the T20 series. I think it's understandable, or it's justified why he did play. Obviously, he's probably been doing well in the nets or in the practice matches for them to select him, because even in the first T20 he batted really well. And before this tour, a lot of the media and a lot of people were worried about his batting. They're saying his batting was not good enough. Our previous coach Mickey Arthur said he did not want playing batting in the top 7 because his batting wasn't good enough. So now that he batted 7, even though he came in at 8 because of the night watchman on the bus, he was scheduled to bat in at 7. And the fact that he scored 91, I think it shows it was a good, it was justifiable to play him as an all-rounder, because not only did he bat well, he's also bowled really well in the first inning, and so far he was consistent near the beginning of his spell. So I think it makes sense. It's a good decision to play him at the end of the day. Yes, Mazhar. The biggest issue was his consistency. In his first Test match, he scored 83 with the bat against Ireland. Okay, it was Ireland, but still an 83 in a Test match is still an 83. They showed his score, he had an 83, 36, and I think it was a 3 or a 7, somewhere in between. So you cannot classify someone an all-rounder by 183, and then all his other scores are just barely reaching 10s, 20s. He has to prove on his consistency. Yes, in the T20s, we bowl decent, but that does not mean you can play in the Test matches. You play him as an all-rounder, even though he didn't do too well with the ball. No one did, in all honesty. It was just after a while, when they played a bit attacking, we got some wickets. Shaheen bowled decent in the first day, but he wasn't too threatening with the ball. You want him to pick up a couple of wickets each innings, and then you want him to score at least 80, 90 runs in the match. As an all-rounder. ज्वाइन कर आनंद का इतनी इंग्लिश बोली जा रही है, आज मुझे भी मौका मिल जाए, मैं भी जाके जो ना थोड़ी फ्रेंच भी बोलूं जाके वहां पे। भाई इंग्लिश तो हम लोग भी बोल लेते हैं, फ्रेंच हमें नहीं आती आराम, तो तू आज हमें वो कर सकता है। वेलकम टू द प्रोग्राम। बड़ा जो है ना हमारा बिजी रहता है, लेकिन कोई नहीं, पूछो भाई, आराम से पूछो कि क्या Yes, first of all, Assalamu alaikum, welcome to the show. I know you are running under the weather. I hope you get well soon. So Arham, क्या बोलोगे? मैच तो देख रहे होगे, मतलब चाहे बीमार हो या कुछ हो,
मैच पहले बताओ लेकिन देखने का कुछ रह नहीं गया। क्यों? डोंट यू थिंक लाइक अगर इवन ये 400 का ड्रॉ टोटल कर करने देते जा रहे हैं तो बॉस। शायद ड्रॉ से कर चांसेस सकते बन हैं। रहे हैं। करेंगे क्या करेंगे इंशाल्लाह। बैटिंग ये होगा कि जब भी आएंगे आई थिंक टी के बाद खेलने तो देयर गोना बी इन फुल डिफेंसिव मोड, ड्रॉ के लिए खेलना है। डिफेंसिव मोड में ये वैसे ही आउट हो जाते हैं। इफ दे गो फॉर अटैकिंग देयर गोना लूज विकेट्स एज वेल। सो आई थिंक बाय लंच टुमारो आई थिंक आइदर बाय लंच टुमारो ये आउट हो जाएंगे सारे, वरना टेल एंडर कुछ किसी तरीके से पुश कर देंगे। लेकिन अगर टॉप ऑर्डर में से 2 बैट्समैन भी थोड़ा बहुत फाइट करते हैं तो वी माइट हैव अ चांस टू ड्रॉ इट अप। जितने भी ओवरसीज टूर्स हमारे होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया का लास्ट ईयर था, तब भी मुझे याद है वो एंड में रिजवान या यासिर शाह वगैरह ही बैटिंग कर रहे होते थे एंड दे यूज्ड टू पुश देम अबव 200। टॉप ऑर्डर में से कोई भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेता। अच्छा एक हमें अपना जायद भाई, ऑर्डर स्विच कर देना चाहिए। बोलिए फरूख भाई। सजाद भाई क्या करते हो? कब रिटायर कर रहा हूँ, कब डिक्लेयर करेंगे ये लोग? यही मेरा सवाल था। थैंक यू फरूख भाई। टी कब आई तक थिंक रहेगी? टी से पहले मेरे ख्याल से इनकी कोशिश होगी कि हमें कुछ ओवर्स देने की। नहीं, क्या ओवर्स, क्या रन, क्या समझते हैं कितने रन करेंगे कि ये समझते कितने रन पाकिस्तान ये रन करेंगे जो लगता है पाकिस्तान चेस पे जाएगा? मुझे देखें, ये मुझे पूछना आपसे। यार सजाद भाई ये इनके रिकॉर्ड आज दिखा रहे थे, पाकिस्तान का जो हाईएस्ट चेज है वो 285 है जी। वो पाकिस्तान में, वो भी या श्रीलंका में शायद। उसके बाद न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान का हाईएस्ट जो टारगेट है वो 277 है जो उन्होंने चेस किया था, जिसमें आपके बड़े बड़े लेजेंड यूनुस खान और मिसबा सब ने अच्छा स्कोर किया था। तो 277 तो हालात वाकयात थोड़ी सही नहीं लग रहे मुझे, लेकिन मैं 300 सवा 300 पे सेफ होकर कर देंगे, ये मेरा अपना ख्याल है। बाकी सबसे बारी बारी पूछ लेते हैं, सुल्तान से, अली से, कि अली को ज्यादा आइडिया होगा कि कितनी फेटी पड़ सकती है और कितने रन बन सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ये पॉइंट, हाँ ये आप जो कह रहे हैं उनका टारगेट जरूर होगा। आई वोंट बी सरप्राइज अगर 375 से भी करके डिक्लेयर वो आपको जल्दी आउट करने की कोशिश करें। द रीजन इज देखें, ये दे वांट टू बी ऑन टॉप 2 इन द टेस्ट मैच चैंपियनशिप। वहां पे इंडिया जो है वो अब जीत रहा है, इनके चांसेस गलत लग रहे हैं, तो दे वांट टू पुट अप अ गुड फाइट एंड विन इट बिग। अभी जितना लेके उसको ड्रैग करेंगे उतना ही स्लो हो जाएगी गेम। They want to utilize the rest of the day to get early wickets and next day just finish it off. So they had an interview with Saad before the game, and he said that वो कोशिश करे कि 130 overs they have to get Pakistan out. So that means pretty much T or around T के वो declare करे, and then have about 30-40 overs tonight, and then your full 90 tomorrow. Declare ये करेंगे 100%. But they're gonna go for it now. The thing is कि 20 overs अगर मिल जाते हैं ना उनको आज के दिन, 20 overs is, और उनका टारगेट ये होगा कि वो आज के दिन पाकिस्तान के एटलीस्ट 3 से 4 विकेट चाहते होंगे कि आज एटलीस्ट पाकिस्तान के 3 तो विकेट मिल जाए उनको. If they get at least 3 wickets from Pakistan today, then the likelihood is कि you have a whole day. एक दिन के अंदर जो है वो 7 विकेटें लेना is not going to be hard for them. So at least क्योंकि आपका जब 2 विकेट गिर जाती हैं और अगर वो नाइट वॉचमैन भेज देते हैं ना, तो नेक्स्ट डे नाइट वॉचमैन को आउट करना बहुत आसान होता है. तो लाइक वो आपकी then the thing is कि those wickets become a lot easier. So I think that's what New Zealand's plan is going to be कि वो at least इतने ओवर लें आज, 20-25 ओवर कि जिसके अंदर वो पाकिस्तान के एटलीस्ट 3 विकेटें ले लें, and then tomorrow 7 wickets would be like game over. I think इनका यही स्ट्रेटजी होगी and it's I mean understandable. लेकिन अब देखते हैं कि ये आबिद अली और शान मसूद कैसे खेलते हैं. मैं कहता हूँ आबिद अली अपने नेचुरल गेम खेले तो बेहतर है. एक चीज ये देखो कि स्टक हुआ है वो. एक चीज ये देखो कि इनका करंट रेट है अभी 3.26, ठीक है. मिनिमम ओवर रहते हैं 64. पाकिस्तान ने जो अपनी बैटिंग की है 239 जो बनाए हैं उन्होंने वो 3.40 के हिसाब से बनाए, ठीक है. तो अगर आज के फर्स्ट को 20 ओवर आज के दिए उन्होंने और कल के 80 ओवर, राइट, तो ये होगा 100 ओवर, 100 ओवर हो गए. और अगर 3.3 के एवरेज से भी पाकिस्तान चलता है तो 300 रन अगर खेलता है तो मेरे ख्याल में अभी इस इनिंग में भी खेल गया पाकिस्तान. अभी यहाँ मुश्किल है थोड़ा सा. फोर्थ इनिंग में मुझे तो विकेट आसान ही लग जाएगी, लेकिन तुम्हारी वाली बात है कि स्विंग होना भी शुरू हो जाएगी. बॉल सैडनर को भी स्पिन मिलना शुरू हो जाएगा बहुत. कल थोड़ी सी थी स्पिन और स्टेट थोड़ी लो है. फारूक भाई मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, कल पाकिस्तान ने 2.3 रन से बैटिंग करी है, नॉट 3.2. ओवरऑल जो उन्होंने बनाए ना पूरे रन वो 2.3 से 2.3 से बनाए.
2.3 चल रहा है। ठीक है सही कह रहे हो, ये लास्ट ओवर देख लिया गलती से मैं 3 पॉइंट उन्होंने 2.79 के करीब बनाए, 2.79 से बनाए, लेकिन अभी बड़े 3.4 से चल रहे हैं। मैं आई विल लाइक टू टेक दिस चेंज्ड मोमेंटम टुवर्ड्स टू मेलबर्न, बट आई हैव अ क्वेश्चन बिफोर वी डिस्कस अबाउट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया गेम। अरहम, तुमसे सवाल है, डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान चेस पे जाएगा चाहे कोई भी टारगेट हो? आई मीन, या माइंडसेट यही है आज ड्रॉ करके खुश होना है? मुझे तो लगता है कि अगर 400 की लीड होती है या 500 ड्रॉ के लिए जा सकते हैं एट दिस पॉइंट। और टेस्ट चैंपियनशिप को अगर आपने इन कंसीडरेशन लेना है, ड्रॉ के काफी पॉइंट्स मिल जाते हैं कंपेयर टू अ लॉस। तो आई थिंक ड्रॉ ही होगा एंड जस्ट प्ले आउट 100 ओवर्स, व्हिच इज रेन भी पता नहीं है इन द फोरकास्ट और नॉट, लेकिन वो आई थिंक इनको ड्रॉ के लिए जाना होगा। लेकिन ये नहीं है कि बिल्कुल अपने शेल में स्टक हो जाए लास्ट इनिंग्स की तरह। अजहर अली, आबिद अली जैसे बिल्कुल आई थिंक 0.5 की रन रेट से स्कोर कर रहे थे एक पॉइंट पे, वेरी स्लो, एंड दे हैव टू प्ले देयर नेचुरल गेम, ताकि जब ये फवाद आलम वगैरह आए तो थोड़ा बहुत कुछ कर लें। फवाद आलम से मुझे उम्मीद थी कल, लेकिन बहुत गलत शॉट पे आउट हो गया। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का माइंडसेट ये होगा कि ड्रॉ इज अ विन। वो पॉइंट्स कंसीव करने के लिए जाएंगे ड्रॉ के, और कोई उनके माइंडसेट में अटैक क्या करेंगे, 400 का अटैक उनको भी पता है कि करना चैलेंज। एक चेस किया था वो 380 उन्होंने श्रीलंका के 383 किया था, इट वाज 2015 में किया था। हाँ, वो फर्रुख भाई 383 किया था 3 के नुकसान पे 2015 में, और उसके पहले जो है वो फिर बहुत पुरानी बात चली जाती है। बैटिंग भी कर रहा था ना, वो भी रिजवान का पहला टेस्ट है एज अ कैप्टन, राइट? तो मेरे ख्याल में रिजवान देखो पठान आदमी है, कुछ भी कर सकता है। तो बैटिंग अच्छी कर रही है पहले, लेकिन वो ड्रॉ के लिए नहीं जाएगा, ही विल गो फॉर द विन। हारना कोई कोच भी तो देखे ना, आप कोच भी देखे, आप कोच भी देखे और कोच की हिस्ट्री भी देखे। ही इज जेन्युइनली बीन अ डिफेंसिव गाय थ्रू आउट हिज करियर। मुझे लगता है कि जो ये ब्लॉकिंग का प्लान था ये कोच का ही था, ये कोई रिजवान ने नहीं बोला होगा कि ये उसका होगा कि आप ब्लॉक करो, आराम से ब्लॉक करते रहो। और आपने देखा ब्लॉक कर से आप अपने ब्लॉक करके 100 ओवर खेल लिए, 100 ओवर आपने खेले, आपने किया कुछ नहीं। आपने कोई पहले 40 ओवर खेले, 5 विकेट 50 रन। इवन न्यूजीलैंड के कमेंटेटर बोल रहे कि ब्लॉक किया है बट यू गॉन नोवेयर। ये वही बात चली जाती है जब मिसबाह अजहर होते थे क्रीज पे बैक इन द डे, और वो पूरे सेशन ब्लॉक करके ना गुजर जाते थे। मेरे पास एक सवाल आ रहा है कुछ सज्जाद भाई, मैं चाहूंगा सवाल का जवाब आप दें। आप ही के मतलब एक अच्छा सवाल आया है उजैर मिनाज जो जीटीए में खेलते हैं और कतालों की स्पोर्ट्स से, पाकिस्तान विल चेस क्वेश्चन मार्क, उन्होंने सरकास्टिक वे में बोला है। मुझे साथ मैसेज भी कर रहे हैं, मजहर भाई डोंट टेक इट ऑन पर्सनली, ओके। मजहर जाफरी, विच पाकिस्तान क्रिकेट टीम डू यू वॉच? हम अभी जो बात कर रहे थे कि मैंने सवाल किया था कि पाकिस्तान चेस पे जाएगा नहीं जाएगा, आई थिंक उन्होंने सवाल किए हैं जी सज्जाद भाई। मेरे हिसाब से उनका पॉइंट वैलिड है, क्योंकि आप देखते हैं इस ग्रुप की लीडरशिप ऑडियो आपकी आवाज नहीं आ रही, कम आ रही है थोड़ी सी। अच्छा, but about now, can you hear me now? Yeah, exactly. Yes. Okay. So his point is valid. Uzair Saab's point is valid. If you look at the leadership or the management of this club, I mean, I don't remember Pakistan cricket ever being led by more defensive-minded people, unless somebody wants to correct me. Since I've been watching cricket late 70s, early 80s से, तो मतलब है वो session by session, they're going to try to block it out. Even yesterday, it felt like they were playing for a draw. Yeah. So I agree with this, Sajjad. Overseas जब पाकिस्तान में overseas जाता है, they always go for a draw. Draw is a win. Even on day one session 1. जी सुल्तान भाई क्या कहेंगे? क्या लगता नहीं है पाकिस्तान बिल्कुल चेस नहीं कर, मतलब कोई भी टारगेट है लाइक 350 से 400 दरमियान, क्या कोई चेस की इंटेंट ही नहीं होगी, या सिर्फ मतलब Asad Shafiq scored 100 in Adelaide and Pakistan lost by 40 runs. How long did it take to score? How long did it take to score that amount? I think over 130 overs that one. I think I was 100. That was Brisbane, a fast outfield. Brisbane, yeah. And the run rate in that match was very good. No, I still have hopes that Fawad is going to score in this inning. He didn't look like a bad. He was looking better than everyone else. If you look at it, वो तो लगान का बैट्समैन लगता है भाई। उनका चांस है। I can't get मेलबर्न में चलते हैं, ये वाला टॉपिक बोरिंग हो रहा है। मेलबर्न में मैं एक बात करना चाहते कि अगर फवाद आलम ने मैं कहा ये टेस्ट और अगला टेस्ट उनके पास है, अदरवाइज वो भी लेजेंडरी बैट्समैन सर खुर्रम मंजूर के सब में शामिल हो जाएंगे साइड में।
अच्छा ब्रेकिंग न्यूज इंडिया ने आउट कर दिया एक उनका तो वो 7 चलो डाउन हो मैं गया आ रहा हूँ, उधर ही आ रहा हूँ, उधर ही आता जा रहा हूँ। चलो अच्छा मैं मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैं ये सिर्फ बताते चलूं कि चेस करेगा या नहीं करेगा, अटैक करेगा या नहीं करेगा पाकिस्तान बैटिंग में। मेरा ख्याल है ये एंटिसिपेट मैं जरूर करूंगा कि डिबेट बिटवीन रिजवान एंड द मैनेजमेंट विल हैपन कि इसको ड्रॉ की तरफ लेके जाना या इसको अटैक, क्योंकि रिजवान पर्सनालिटी वाइज ही इज अटैकर, ही वुड सजेस्ट कि हम जाए, लेकिन मेरा ख्याल है डिबेट जो है वन ड्रॉ की तरफ ही जाएगी। दे विल फोकस ऑन दैट। जो रियलिस्टिक भी लग रहा है सिचुएशन को देख के। अटैक किससे करेंगे, आपको पूरा टॉप ऑर्डर तो चला नहीं, अब किसके ऊपर वो, या तो किसी ने ऊपर और से एक ने सेंचुरी मारी होती तो फिर भी वो थोड़ा सा हौसला पकड़ते ना। हमारे पास डेविड वार्नर कोई नहीं है। मैं वही ना, डेविड वार्नर ऊपर का से आपने आपकी जिक्र सारी, किया। हाँ लो, मैंने कहा कि डेविड वार्नर का जिक्र किया। कल मुझसे अली ऑफ टॉपिक बात कर रहे थे कि भाई मेलबर्न के ऊपर कोई इनके लेवल का है नहीं कि अली से कोई बात करे। तो आज मैं डिस्कशन 3 लोगों पे, मैं मतलब 3 लोगों से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं बोलूंगा साद एंड नजर विल ज्वाइन मेलबर्न डिस्कशन। यस अली, अरहम एंड सज्जाद भाई जी, फिर सुल्तान भाई एंड में आप भी आइएगा। बताओ मेलबर्न का। जी अली, आप बहुत बोलते हैं ऑफ टॉपिक, मेलबर्न मेलबर्न मेलबर्न। यस, क्या चल रहा है? यार मेलबर्न में ये चल रहा है कि इंडिया जो है ना वो आउट क्लास कर रहा है ऑस्ट्रेलिया को होम पिचेस पे। ठीक है, उनकी कंडीशंस को बहुत अच्छे से उन्होंने जो है वो अडेप्ट किया है। और आई थिंक उनकी जो बॉलिंग है इस वक्त इंडिया की, दैट इज बीइंग टॉप नॉच। मतलब ऑस्ट्रेलिया को उनके होम सॉइल पे इतना ज़्यादा जो है वो ट्रबल करना। सो एंड ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने बैटिंग में बहुत रेजिलियंस शो की। ठीक है, जडेजा ने और रहाणे ने। So I think it's very impressive to see कि India is not just like like घर का शेर नहीं है अब। वो बाहर जाके भी जो अपना जो उन पे टैग लगा हुआ था कि वो घर पे सिर्फ जीतते हैं, वो जाके अब they're proving it wrong और they're doing pretty well in the absence of Kohli and Sharma. So I think that's very impressive and I'm actually very happy to see how they're doing. यस सजाद भाई, व्हाट डू हाँ यू मुझे थिंक इस, अगेन मैं आज फिर बोलूंगा, जो सिराज बॉलिंग कर रहा है ना, आई थिंक ये उनको भुवनेश्वर कुमार और मेरे ख्याल से उस लेवल पे जाएगा ही डेफिनेटली 5-10 टेस्ट में। क्या बिल्कुल कहेंगे? बिल्कुल। लेकिन इससे पहले मैं कहूँगा, मुझे तो आहिस्ता आहिस्ता ये फील हो रहा है कि कोहली की एब्सेंस माइट बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। उनकी टीम इतनी डेवस्टेटिंग लॉस के बाद इतने प्यारे तरीके से उन्होंने बाउंस बैक और रीबाउंड किया कि मजा आ गया। मतलब है जिस तरह से लोगों के जहन में था कि शमी भी नहीं है, ईशांत शर्मा भी नहीं है, रोहित भी कोहली नहीं भी है, नहीं है। कोहली भी नहीं है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि कोहली के जाने से टीम बेहतर हुई है। आई मीन मेंटली दे फील मोर, दे सीम टू बी मोर रिलैक्स। और उन पे अंडरडॉग का टैग लगा है, वो ज्यादा एंजॉय करके खुश होकर रिलैक्स होकर खेल रहे हैं। तो ये मैंने बहुत ज्यादा फील किया। दूसरा ये कि मुझे उनके जो अश्विन की बॉलिंग है ना, उसका बहुत मजा आ रहा है। मतलब है वो जो 1 for 100 वाले हमारे उस्ताद कराते होते हैं, वो वाली बात नहीं है उनमें। सजाद भाई, अरहम, इसी पॉइंट पे अश्विन की आपने बात की, इस वक्त हारिस सुहेल को यूज करना मुनासिब नहीं होगा जिस तरह की पिच की हालत होगी बिल्कुल पाकिस्तान की? मेरा बिल्कुल ख्याल है बिल्कुल। उसके ओवर ज्यादा खिलाएं अभी। अभी तो आपकी ये पेस से कुछ खास नहीं कर सुल्तान भाई थोड़ा सा आएंगे उसके ऊपर, ये पॉइंट रखिएगा। ये जब मैं स्विच करूंगा ना अभी 10-15 मिनट के बाद, ये पॉइंट रखिएगा, फिर मैं आपसे इसी पे एक काउंटर क्वेश्चन करूंगा। अरहम, रहे। व्हाट डू यू थिंक इन, इंडिया ने बहुत स्ट्रांगली बाउंस बैक किया। आई थिंक रहाणे played a captain's knock 100 odd and I think they're in a very good position. I think उनकी 26 की lead है and they only have 3 wickets left. One thing that was unfortunate for Australia was Tim Paine's dismissal. I think the या DRS issue, and it was at a crucial stage as well because he was batting well. He's had a good domestic season and he was batting well, and I think maybe he could have made a partnership with Cameron Green and things could have been different. But other than that, India has been dominant. But Cameron Green is a good player. I think I've been following him this year in domestic. But I think it's impossible now to win this test unless Stark pulls up a partnership with him. साथ क्या कहोगे? Yeah, I was actually talking to Nasser before this test match. I think they should have played a proper opener in this match. I don't think it was necessary to move Wade to opening and have Cameron Green play at 6. First, Joe Burns was not in good form anyways, so matching him up with Matthew Wade, who's never opened. He was saying, "Oh, I've had it 3, I've had it 4, but I've never opened in red ball." So I mean, I think, and the fact that he's in such great form, I don't know what was the need to like shift him around. So they had other options. They had Marcus Harris, who they're not playing, and they also have Khawaja who they're not using at the moment. And I'm pretty sure he scored 100 in this ground against, I think, was it Sri Lanka or England? I'm not exactly sure.
So he has a good record in Australia. So, and the fact that he has Smith around him and Labuschagne around him, he'll feel more confident than he did last time India toured when he was the main guy. So I think they should have played him. I think they kind of missed the trick there, and I think next Test match Joe Burns is going to get dropped because his form has been very poor. But I'm not sure who got out. Arham, was it Cameron Green or Pat Cummins who got out this morning? Pat Cummins. Okay. Well, this is Cameron Green's chance. To be honest, I'm not blown away by him yet. Even in the ODI that he played in the first Test match, I think he really needs to step up with his batting. Australia is all about, you have to score runs. You're playing with the big boys. So now he's playing with the big boys. He's got to show what he's made of, and if he can score something in this inning, he'll stay in. But I think he's under pressure in the next Test match as well. Yes, NAsar. वैसे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम लग जाएगी. अभी चौथा दिन शुरू हुआ है, थोड़ी देर हुई है अभी और 26 की लीड है, सिर्फ काफी सारे आउट हो गए. क्या कहते हो? मेरे दोस्त कह रहे हैं भाई, मैंने तो राइट ऑफ कर दिया था इंडिया को. आई मीन इवन बिफोर द सीरीज एंड आफ्टर द फर्स्ट टेस्ट मेरा ख्याल था वो एक टेस्ट भी मुकाबला ड्रॉ भी नहीं करेंगे, लेकिन दे शुड विन दिस टेस्ट. 4-0 की बजाय क्या 1-1 दे गोइंग टू द थर्ड टेस्ट, एंड इफ डेव वार्नर इज नॉट देयर, ऑस्ट्रेलिया मेंटली ठीक नहीं है वार्नर के बगैर, मुझे लग रहा है. 36 से ऊपर कर ले ऑस्ट्रेलिया, फिर कुछ भी हो सकता है. NAsar, what do you think about NAsar? What do you think about like Steve Smith? Why he's not performing? I mean, he had a great ODI and T20s hopeful year, but these two Test matches, I think he scored 0 in first Test match, 0 in first inning. I think hardly scored in second inning. What do you think? Why Steve Smith is not performing? स्टीव स्मिथ का एक अगर आप उनके इंटरव्यूज देखें तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसके हैंड. उसने आईपीएल में इतने रन नहीं बनाया, वापस आके ऑस्ट्रेलिया में उसने बोला कि आई कैन फाइंड माय हैंड्स. स्टीव स्मिथ की जो हैंड्स आते हैं वो अभी थोड़ा सा ज्यादा पॉइंट से आ रहा है, तो इसलिए वो अश्विन पर फॉल ओवर हो रहा है या सीधी बॉल पे जो स्लिप पे निक हो रहा है या ही इज गोइंग टू फॉर अक्रॉस. अभी उसका आ जाता है कभी कभी, और अभी उसका टफ मैच चल रहा है. अब इससे ज्यादा मतलब स्टीव स्मिथ से ही पता चलेगा कि क्या होगा, कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग. मगर वो रहाणे ने जो फील्ड सेट की है, जो प्लान उन्होंने किया है, वो इट्स बीन वेरी गुड, नॉट जस्ट टू स्मिथ बट टू ऑल द बैट्समैन. जी सुल्तान भाई, क्या लग रहा है इंडिया लंच टी के ऊपर गेम खत्म कर देगा? लंच पे तो नहीं कर पाएगा, आई थिंक टी तक मुझे लग रहा है. पेरेंटली तो ऐसे ही लग रहा है. अभी तो देखिए 3 विकेट्स रह गए, मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज्यादा चैलेंज जिस तरह का अटैक करे. बहुत उनकी स्पिन भी बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही है. अश्विन इज गोना मेक अ ब्रेक. ये आखिरी 3 विकेट्स को इतना आगे नहीं लेके जाएंगे और जीतेंगे. उन्होंने उसको देखे, हम काउंटर भी तो करना ना 36 पे जो आउट हुए. करेक्ट. They have to cover it up somewhere with a big win. अली ये बताओ क्या चीज वर्क कर गई ये टेस्ट मैच में? लास्ट 36 की जो उनको मिली एम्बैरेसमेंट, एक कोहली नहीं है, या जो मैंने बोला ब्लेसिंग डिस्गाइज जो एक चीज है, या बॉलिंग या बैटिंग, चार में से कौन सी चीज क्लिक कर गई, या चारों चीजें जो है वो ऑन टॉप? ये ऑनेस्टली इस वक्त मैंने आई थिंक जब हम लोगों की इससे पहले कॉन्वर्सेशन हुई थी, जब टीम डिसाइड हो रही थी फर्स्ट डे, मैंने कहा था इस वक्त इंडिया की टीम बहुत मतलब इतनी बैलेंस्ड काफी टाइम से नहीं लगी. लाइक उनका लास्ट टेस्ट मैच के कंपैरिजन में इस टेस्ट में उनकी टीम बैलेंस बहुत थी. जडेजा के आने की वजह से आई थिंक इट हैज गिवन अ बिग बूस्ट, ठीक है, बैटिंग में एंड बॉलिंग में, ठीक है ना. एक स्पिनर था अश्विन, तो आई थिंक एक स्पिनर से काफी जो है वो इतना नहीं हो पा रहा था, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में बॉल इवेंचुअली टर्न करना शुरू कर देती है सेकंड थर्ड डे पे. तो आई थिंक जडेजा के आने से उनको बूस्ट बहुत मिला. और दूसरा ये कि आई थिंक इनके जब इतने प्लेयर जो बेंच पे बैठे होते हैं इतने हंग्री होते हैं परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि सारे कोहली और शर्मा जब जगह लेके बैठ रहे होते हैं वही परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनको हटाने का भी जो है आपको कोई रीजन नहीं मिलता. तो जो नए लड़के जो बेंच पे बैठे होते हैं दे आर सो हंग्री टू एंड सो ईगर टू परफॉर्म कि जैसे उनको चांस मिलता है एवरीवन कैपिटलाइज ऑन द फर्स्ट गेम दे गेट. So I think मोहम्मद सिराज, जडेजा दोनों ने जो है they showed up to the occasion. I think that's been their key, जिसकी वजह से. And I don't really think बड़ी टीम्स और बड़े प्लेयर जो होते हैं they don't take one off 36 all out या 50 all out इस तरह की जो है वो इनिंग्स, क्योंकि उनको पता है कि हम we are good players, उनको पता है हमारा टैलेंट कितना है, हमारा हार्डवर्क कितना है. So I don't think कि one inning or one game can really change their mindset कि वो we're not up to, उनका confidence level down नहीं होता. They're not like पाकिस्तान टीम जिनका जो ना बंदों को अपनी जगह पता ही नहीं है कि वो एक गेम से जो है ना वो उनका मोरल डाउन हो गया. So I think that's where India's character shows a lot, and I just feel कि you know that's really what has worked.
I had a question for you guys. If Australia somehow manages to get 100, 110 lead, do you think we'll be in the game or no? Because No, it not is a a tough chance. wicket. Not a It is a chance. tough wicket. Doesn't matter. But 100 I think मैं क्या कहते हैं सज्जाद भाई 150 चाहिए उनको to be in the game, ऑस्ट्रेलिया को. Which is almost impossible now, I think. देखिए हाँ, बताऊं ये भी 150 ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप है वो बहुत स्ट्रांग है. वो ऑब्वियसली कमिंस और हेजलवुड कॉन्फिडेंस में हो गए और अगर स्टार्क ने एक और शुरू में विकेट निकाल दी जैसे वो निकाल रहा है आज तक तो वो समझेंगे 150 का वो बहुत ज्यादा बना देगा. आपको पता है ऑस्ट्रेलियन कितने चर्पी हो जाते हैं. टिम पेन आपने देखा है वो कितना चर्पी हो जाता है और मैच भी ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलियन होम कंडीशन है उनकी तो मुझे लगता है 150 तक अगर हो गए और अगर वो एक दो विकेट शुरू में निकाल दे तो बहुत मुश्किल हो सकता है. I think Hill's wicket is going to be key in the start because he's going to play attacking. Yeah. Naturally. And then if he scores a quick 30, 40, then it's going to be difficult for them. अभी तो it's all on Cameron Green. Cameron Green. I think if Payne, on Tim Payne's dismissal, if that DRS mistake had come, they would have been in a better position because Payne is in decent form and he could have changed things around. I want to just change the subject and take a minute. Just one, there is a bad news that there is a local club, West Indies Cricket Club in GTA and TND League, and they have lost one of their good supporter and one of the main person named Neville Nelson. He passed away recently. So our condolences to Nelson's family and West Indies Cricket Club. He was a long-serving member of West Indies Cricket Club, and he really loved the club. So our condolences, and so that just want to take a moment, and because we are in Canada and we strictly take part in local cricket too, and we have our eye. So we would like to share these kind of news, or so our condolences again. So with that, तो वेस्ट इंडीज के क्लब से हम बहुत ही ताज़ियत का इज़हार करते हैं सर की वफात के ऊपर. Just came across this news, so I just want to share on the contrary that we want to actually acknowledge and हमारे अरमान कपूर हमारे बहुत अपने उनकी आज बर्थडे, so we want to wish him happy birthday अरमान कपूर. और अरमान कपूर बड़े हमारे स्टार बैट्समैन हैं कैनेडियन अंडर 19 के कनाडा की. उन्होंने में हाई परफॉर्मेंस टीम को भी खेला. एक और जगह भी उनका नाम था कनाडा टीम के लिए, लेकिन शायद वो गई नहीं टीम. तो बट मजहर के बहुत अच्छे फ्रेंड है. मजहर के साथ बहुत मेरे तो अच्छे हैं ना हो, लेकिन ये अराब खान शाहिद के बहुत ही अच्छे बडी हैं और इस हिसाब से मैं मोमेंटम से स्विच करूंगा. अरमान कपूर जुग जुग जियो हजारों साल और डॉल्फिन के कैप्टन हर साल बनते रहो. ओके अच्छा मजहर भाई और फिर अगर वो हर साल बनते रहे मजहर भाई की जगह नहीं बनेगी टीम में. बस अब मजहर भाई ने अपनी सीट बना ली है जगह, उनको जरूरत नहीं है, ये सीट है मजहर भाई यही बैठेंगे. ओके अच्छा चलो मेरे पास कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैं फिर तुम लोगों से इसके जवाब दूंगा. हमादुद्दीन अकबर ने आज ज्वाइन किया हम लोग को. अस्सलाम वालेकुम हमादुद्दीन, तुम भी आज हम लोगों ने थोड़ा लेट शो किया है बट थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस. ओके हु विल आंसर दिस? Sandeep Singh Labana, sir, what happened to the Pakistan bowling and do you think this is the worst Pakistan lineup in the past? Second worst. नहीं second worst नहीं, last year ऑस्ट्रेलिया में हम लेके गए थे वो that was the worst. यही थी. हाँ वो चापल से पूछे वो बताएगा. Sir, what happened to the Pakistan bowling? First of all, तुम लोग end पे नहीं जाओ but ये tell him what happened. Yes, Saad, anyone like or maybe यार मैं बताता हूँ. पार्टीशन हो गया था असल में पाकिस्तान और इंडिया का, तो जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान की लाइनअप बहुत खराब है. अगर पार्टीशन ना हो तो दोनों की लाइनअप बहुत अच्छी होती है. अभी पाकिस्तान की बैटिंग बहुत अच्छी होती है, बॉलिंग बहुत अच्छी होती है. बॉलिंग यार चल रही. आमिर देखो, आमिर नहीं है, बहार नहीं है, सुहेल खान बाहर बैठा हुआ है और क्या नाम है उसका मोहम्मद अब्बास जो है वो नसर की स्पीड पे गेंद कर रहा है. शायद नसर बहुत तेजी है उससे, एक्यूरेसी कोई नहीं. सब कह रहे हैं कि एवरीबडी वुड लव टू हैव अ बॉलर लाइक अब्बास इन देयर टीम एनीवेयर, बट स्पीड बहुत ज्यादा कम है. तो वो मोमेंटम नहीं बन रहा ना कि वो अगर थोड़ी सी स्पीड और स्विंग भी नहीं हो रही. पता नहीं बॉल बनाना भूल गए पाकिस्तानी, क्या हो गया, कुछ कैमरे ज्यादा लग गए हैं आजकल. तो I think it's very simple. I mean, Waqar Younis has proved throughout his CV that he's not good enough to coach. He had 2 roles as head coach of Pakistan. Both of them failed. For some reason, the smartest person in PCB decided to bring him back again with no reason at all. Brought him back, and you can see our bowling has dropped off massively. I think we're not even a threat
when we came here, we were thinking, oh, our bowling stronger. But realistically, our bowling is much weaker than theirs. On our bench, we have Sohail Khan, who's been bowling well, but again, he made his debut in I think 2009, so he's already 30 plus. So we don't have anyone on the bench who's exciting to take a role of anyone who's playing. And I think it just shows that our coaching is not good, our selection panel is struggling, and I mean, it's just poor from everyone included in the selection I think process. this is a bit harsh. Like your comment, or it's a bit harsh. Like I wouldn't call it the worst. Like potential, if you look at Shaheen, Naseem, they're still young. They're all under 20, and the first innings wasn't as bad as the scorecard might suggest. The fielding was also fielding थोड़े वरना शहीन वगैरह ने opportunities तो निकलवाई. अब नसीम चलो वो out of rhythm था, वो अलग बात है, लेकिन worst कहना I think it's a bit too harsh because I don't think it's the worst bowling. I guess that Sultan bhai, worst जो है वो last year inexperience भी बहुत है. Like पहले आमिर वहाब होते थे, I guess अब थोड़े बहुत experience थे. अब it's all a young team. Even Abbas isn't as experienced as you might want him to. So and they're not performing as well. Sure. So सुल्तान भाई जरा ये सवाल का जवाब दें, फिर अगला सवाल भी मैं आपसे लेता हूँ. थोड़ा सा इस सवाल के बारे में बताएं, क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान की ये पूछना चाह रहे हैं कि इतने सारे पिछले पाकिस्तान के 10 साल 15 साल गुजरे कि जो बॉलिंग है ना बन गई 8-9 बॉलर्स का, क्या ये वर्स्ट है? मेरे ख्याल से तो इन माय ओपिनियन के वर्स्ट है. नहीं, मैं एग्री नहीं कर सकता इससे. देखें, आप शाहीन शाह अफरीदी इज अ ग्रेट बॉलर, बहुत अच्छा प्रॉस्पेक्ट है फ्यूचर के लिए, पर अभी भी इज अंडर डेवलपमेंट भी वो परफॉर्म कर रहा था. अब तो बड़ा वो मैच्योर हो गया. नसीम शाह, देखें जो नसीम शाह की डिसअपॉइंटमेंट थी वो अब जो लास्ट मैच में कर रहा था, पेस नहीं लेके आ रहा था. अभी आज की अगर उसकी बॉलिंग देखें तो वो अटैक कर रहा है, विकेट्स को बाउंस दे रहा है और पेस भी 140 के करीब ले गया. तो ठीक है. उन्होंने लास्ट इनिंग्स में उन्होंने अगेंस्ट द विंड आज वो कह रहे थे कमेंटेटर्स पूरा टाइम बॉलिंग की, इसलिए भी उनकी पेस काफी लो थी. हाँ नहीं, तो 132 पे करा रहा था कुछ बॉलें, लेकिन आज वो वापस रिदम में आ रहा है. और हाँ, ये बात जरूर आप कह सकते हैं कि अभी इस वक्त बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है आपके साइड पे, ये बात मैं मानूंगा, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली वर्स है. और ये अभी आगे जाके और भी अच्छे होंगे. हाँ, ये था कि आपकी बॉलिंग आप किस स्ट्रेटेजी के मुताबिक कर रहे हो, वो मैंने पहले भी टच किया था कि अभी आज उनका अटैक लगा. आज आप देखें कि जो अफरीदी हैं वो भी राउंड ओवर दोनों आ रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, पेस भी निकाल रहे हैं, वैरायटी भी डाल रहे हैं. तो आज बॉलिंग के साथ उन्होंने हुक पे भी देखे, उसके नसीम शाह के लिए उन्होंने सारी प्रोटेक्शन रख के 5 प्लेयर्स भी रख के बॉलिंग करवाई है लेग पे, ताकि हुक करे कैच. तो पाकिस्तान इज कमिंग बैक टू द प्लानिंग एंड दिस इज गुड साइन. तो अभी देखिए, अभी तो ये पहला टेस्ट मैच है, और अभी अगर ये ड्रॉ कर देते हैं किसी तरह, विच विल बी एन अकम्प्लिशमेंट, फिर नेक्स्ट में देखें जिस तरह ये अपनी इंप्रूवमेंट्स दिखा रहे हैं, प्लानिंग नजर आ रही है, कम्युनिकेशन नजर आ रही है, रिजवान इज कम्युनिकेटिंग टू द प्लेयर्स, गोइंग टू द बॉलर्स, टॉकिंग. आई थिंक नाउ दे हैव कम टू सेंसेस कि वी हैव टू प्ले विद द स्ट्रेटजी एंड प्लान. लेकिन नेक्स्ट में तो वो वापस आ रहा है हमारा हीरो बाबर आजम. उसका फर्स्ट मैच होगा, फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे. फर्क बहुत पड़ेगा यार, कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क पड़ेगा. तो बात करते हैं ये भाई अंदर अकबर साहब का क्वेश्चन ले लें. जी सज्जाद भाई जवाब दीजिए. ब्लेंडन एंड लैथम आर डूइंग रियली वेल टुगेदर एंड केन विलियमसन इज इन नेक्स्ट. डू यू थिंक दैट? सज्जाद भाई से पूछ लेते हो. अब तो टीम में अब तो लंच अब तो शुरू भी हो गया. लंच हाँ मैच हो गया. मैं चाहता हूं कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मतलब जैसा सवाल करेंगे भाई, अब इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सज्जाद भाई की जो नजर है वो बहुत गहरी नजर होती है, तो मैं चाहूंगा कि वो गहरी नजर से अच्छे सवालात के जवाब दें. जी सज्जाद भाई, वी कैन स्टिल विन और नो? नो, ऑफ कोर्स नॉट. क्योंकि आप आई मीन यू सेड इट ऑलरेडी. हमने तसल्ली भी नहीं दिया. भाई हमारा भी नंबर को तसल्ली देते हैं, सुबह जागा वो 5 बजे. नहीं देखें, आप हमाद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ब्लेंडल भी है, लेथम चल रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं, और केन विलियमसन आएंगे उसके बाद ना, तो दे विल बैट अस आउट ऑफ द गेम. क्योंकि इस वक्त जो है ना वी आर इन अ डिफेंसिव पोजीशन. लेकिन टेस्ट क्रिकेट का ये मजा आता है कि इस पोजीशन से अगर इन्होंने बचा लिया टेस्ट, तो वो अपनी विक्ट्री होगी. तो मैं तो कहता हूँ कि ड्रॉ, क्योंकि उससे फिर मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है इनके फेवर में सेकंड टेस्ट में.
कौन वो क्रूशियल बैट्समैन होंगे इन योर ओपिनियन जो अगर थोड़ा बहुत स्कोर कर लेते हैं तो मे बी ड्रॉ के चांसेस? भाई मुझे तो अजहर अली से फर्स्ट अजहर अली ना उम्मीद थी, अब मैं कुछ नहीं कह सकता ओ उनके भाई बारे में। अच्छा सवाल है। मैं आपने कहा था गो मेरे ख्याल मेरे जो टॉप बैट्समैन मैं कह रहा हूँ शान मसूद करेगा कुछ, ठीक है, और हमारा जो है ना डार्क हॉर्स हारिस, क्या नाम है उसका, हारिस सोहेल। हारिस, वो हारिस रऊफ ही आता है मेरे, क्योंकि इतनी जल्दी आता है और चला जाता है ना वो, तो मैंने वो हारिस रऊफ तो ये इन्होंने बड़ी उम्मीद है। और फवाद आलम को यू नो आप सर्वाइवल, रिजवान को भूल गए। रिजवान, देखो मैं रिजवान और वो तो हमारे स्टार प्लेयर हो गए ना दोनों। मैं फरूख भाई ये देखो एक मिनट बात क्लियर है, क्योंकि कराची वाले बहुत सारे जज्बाती हैं फवाद के बारे में, लेकिन भाई जहां फवाद की ना पांव हिल रहे हैं, ना सिंगल बन रहे हैं, ना डबल बन रहे हैं, उससे वहां पे फहीम अशरफ जो है आके स्कोर कर रहा है 91, वो 90s कर रहा है। इसके पास ना बल्ले के ऊपर वो जो है ना वो भी नहीं है, स्टिकर भी नहीं है भाई। उजैर स्ट्राइकर भी नहीं है। म्यूजी वाले उसको सस्ते में पकड़ ले, उसको स्टिकर लगवा दे उसके बल्ले के ऊपर, 91 उसने बनाए। तो और सर रिजवान के बाद तो ग्रेनिकल्स है। तो लेकिन ये कि भाई जहाँ पे फर्क पड़ता है, 11 साल तुमने क्या किया फवाद आलम, तुम डोमेस्टिक में सेंचुरियां बनाए जा रहे हो भाई, ये दिस इज द मेटल, वी हैव टू प्रूव इट। तो ये तुम्हारी जो है ना बड़ी सर्वाइवल इनिंग है, इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना अगला मैच ना मिले। पता है अगला मैच पता है सैड क्या होगा कि अगर ये फेल होता है, अगली सीरीज साउथ अफ्रीका होम सीरीज है, तब तक बाहर ना हो जाए, क्योंकि बिकॉज वो कोशिश वो, क्योंकि अभी देखे हारिस सोहेल जब भी ओवरसीज जाते क्वाइट बिट ऑफ द टाइम वो नहीं जाता, या वो बिल्कुल नहीं परफॉर्म करता। इंग्लैंड में ही सैट आउट रिसेंटली, वो नहीं था। होम में वो हारिस सोहेल खेल लेता है, उसकी शॉर्ट बॉल की बहुत बड़ी वीकनेस है। न्यूजीलैंड ने उसने इतनी बॉलें नहीं खेली कि उनको पता चले कि इसकी ये वीकनेस है। ये हमने लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में देखी थी, और हमने प्रीवियसली भी देखी है जब टीम्स ने इसको टेस्ट किया बैक ऑफ द लेंथ पे। वो फेंट करता है, वो टच करता है, कीपर पे एज देते हैं। न्यूजीलैंड ने उसको आगे दी, उसने सीधा गली को ऐसे कैचिंग प्रैक्टिस दिया जैसे आप करते हैं ना। वो अगर थोड़ा खेल ले, वो शॉर्ट बॉल शुरू कर दे, वो नहीं खेले। नसर यहाँ पता चलता है कि पीसीबी किस प्लेयर्स को फेवर करती है और किसको सेव करना चाहती है। अगर उसको सेव करना चाहेगी ना, तो अगले मैच में वो हारिस को बिठाकर फवाद को खिला देंगे, ताकि काम बिल्कुल पक्का सीमेंटेड हो जाएगी। लगता है लेकिन वो बाहर नहीं होगा। मेरा यही सवाल, मैं कंटिन्यूटी सवाल में सुल्तान भाई से करूंगा। लास्ट 10 टेस्ट इनिंग्स है, उसमें उसकी 250 प्लस स्कोर्स हैं, एक दुबई में और एक रावलपिंडी में, बाकी सारे सिंगल डिजिट्स हैं बाहर, इन ऑस्ट्रेलिया, इन एवरीवेयर। He can't play away from home. I mean, for the test match, he doesn't know when to drive. Last year in Australia, he only played the first test match. Both innings he got out the same way. I mean, I remember in the commentary. Even in the T20, he got out that way. Huh? Yeah. Right? Yeah, he outside off, nicks it straight to the keeper. And then they dropped him second test and then brought him back when he went Pakistan. I mean, even in match. Yeah, go on. No, go ahead. No, go ahead. Go ahead. Complete. I was saying he doesn't know when to stop driving and all, because in test matches you got to be careful. Obviously, you got to show intent. But even before he got out yesterday, a couple of deliveries he tried to touch when they were completely outside, and eventually he got out. So I think he's someone who's got to really like understand his role, not always drive for everything, because I don't think he has the control in himself in these pitches to prevent himself from playing those four shots. Okay, मेरे पास 7 मिनट्स हैं, तो मैं एंड से पहले मेरा सवाल है सुल्तान भाई से। सुल्तान भाई, फॉर एग्जांपल बाबर आजम नेक्स्ट टेस्ट मैच में आ रहा है फॉर श्योर। अच्छा, मेरा सुल्तान भाई तो मिसबा की तरह लग रहे हो बिल्कुल। ना वो मैनेजमेंट का कह रहा है, मेरे पे ना कोई कमेंट फेंक देना भाई इधर। मैं वही डर के देख रहा हूं मिसबा के मेरे पे ना कोई बात करते। नहीं मैं आ ही रहा था उसके ऊपर कि व्हाट इफ जैसे बाबर आजम आ रहा है, तो एक ना एक बैट्समैन जाएगा ऊपर, 6 में से एक ना एक बैट्समैन बाहर होगा। व्हाट इफ अगर हारिस सोहेल ने गलती से रन कर दिए, तो मुझे लगता है ये फवाद आलम ने अगर रन नहीं किया, तो जैसे फरूख भाई कह रहे हैं ना, उसको सेकंड टेस्ट मैच, मुझे लगता है ये शायद उसका आखिरी टेस्ट मैच होगा अगर हारिस सोहेल ने रन कर दिए, उसने रन नहीं किया। क्या समझते हैं? ये आबिद अली को बिठा के ना अजहर अली से ओपन करवाएंगे अगर बाबर आजम आते हैं। जी सुल्तान, नहीं क्या कहते हैं? मैं मैक्स से एग्री करूंगा, क्योंकि पता है there has been lots of noise around फवाद आलम, एक्सपेक्टेशन भी उसी तरह डेवलप हो गई है। अब इस वक्त एक तो उनके स्टांस को लेके वैसे बड़ा लोगों को क्रिटिसिज्म रहता है, उसको ऊपर से ही कम्स वेरी लेट। आई मीन अपने स्टांस पे कभी, और उसका मैं जो द ओनली थिंग दैट आई वरीज मी कि वो अपना जो मार्क लगाता है ना, ठीक है, अब कभी वो उस पे आता है, कभी नहीं आता जब व्हेन ही कम्स बैक।
and that is dangerous. That is where he loses the control of because he has to come in line. और वो वहाँ पे वो जो उसका stance है बड़ा difficult है कि every ball he comes on his mark. He doesn't start with that. तो score नहीं करेगा तो I think that would be the only option. ये बात नहीं है. हारिस सोहेल देखें, हारिस सोहेल को अगर वो स्पिन के तौर पे बैकअप यूज करें तो it'll be definitely him. देखिए, if you want to take Fawad out, they have almost a win-win situation. हारिस सोहेल को नेक्स्ट गेम बिठा दे, फवाद रन ना बनाए, फवाद बाहर है. हारिस सोहेल रन बना दे, नेक्स्ट मैच खेल लेगा, साउथ अफ्रीका खेल लेगा, फवाद फिर भी बाहर है. सो फॉर फवाद ऑब्वियसली कि उसको इस मैच में नहीं बट नेक्स्ट मैच में भी अगर रन बनाए, अगर वो खेले तो उसका ऑलमोस्ट ही इज गोना कंटिन्यूअसली कीप स्कोरिंग कि उसकी जगह के लिए, जगह के लिए, क्योंकि वो ऑब्वियसली मतलब ही इज ऑलमोस्ट ऑन द एज. He is still playing as a specialist batsman, okay? Yeah. उसका कोई और रोल है ही नहीं. अगर वो उसको भी फुलफिल नहीं कर सकता, it's very difficult for him to survive. सही. चलो मैं एक दो सवाल आए हैं मैं ले लेता हूँ. अगेन राय शुएब साहब सवाल कह रहे हैं कि व्हाट डू यू थिंक गाइस अबाउट टीम मैनेजमेंट मिसबा एंड वकार. जी अरहम, spoken about this like 100 times I think. Yeah, छोटे-छोटे कमेंट बिल्कुल. चलो ओके. हमादुद्दीन अकबर साहब कह रहे हैं एवरीवन हैज मेक अ पॉइंट. या गो अहेड अरहम. चलें, ये तो आई गेस इसका तो कोई जवाब ही नहीं है. ब्लंडल आउट हो गया है, अब्बास ने ब्लंडल को आउट कर दिया. सही. चले अब्बास ने ब्लंडर को आउट कर दिया, लेकिन स्टिल जो है 300 रन की लीड हो चुकी है. सजाद भाई, डू यू स्टिल थिंक लास्ट 4 मिनट्स है, मैं सबसे एक मिनट लूंगा. डू यू स्टिल थिंक दे गोना पोस्ट 400 इन टोटल एंड रिटायर और डिक्लेयर, और बिफोर लाइक 370 और 350? व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल से वो सेव करके 400 करके वो डिक्लेयर करेंगे. ओके. यस साद, व्हाट डू यू थिंक? I don't think they care about runs. I think they care about the overs, because for them a draw was not enough for the top 2 in the world Test Championship. They need to win. Especially now that they know that India is in a very good position to win. They're not even, if they post 400 but it takes too much time, they're going to see that as a negative. So even if Pakistan somehow contains their runs, it doesn't matter until, I think Miss Sanders said 130 overs. Once that many overs are left, I think no matter how many runs they have, they're declaring, because they have enough faith in their bowlers to get them bowled out. And a draw in this situation for them is going to be a loss, and it's going to hurt more than a loss, because it's going to technically, I think mathematically, almost make it impossible for them to make to the finals. So for them, it's a win or nothing in this Test match. जी सुल्तान भाई. Yes, I agree करता हूँ, और I think they will play with the plan. I think they will try to have enough more overs so that they can bowl Pakistan out. But I think I won't be surprised if they declare at 375. 375 और टी तक 375 ये तो कह रहे हैं. क्या लगता है कि अगर टी तक लेके जाएंगे 375, या बस 375 कभी भी होगा? पहले भी कर सकते हैं. No. अब आप देखिए 75 रन एक सेशन में, तो अभी तो टी तक एक सेशन है, 75 चाहिए उनको. 75 तो वो एक सेशन में बना लेंगे जैसे वो खेल लेते हैं. तो वो मुझे लगता है टी से या तो बिल्कुल पहले फौरन टी पे ही डिक्लेयर कर देंगे. और टी तक अगर वो थोड़ा अटैकिंग खेले तो कह रही है कि अगले आधे घंटे तक डिक्लेयर कर देंगे. अब ये पता नहीं लेजिट है. हां, मेरा यही उनका प्लान ये है कि आज ही वो ऊपर की 3-4 विकेटें निकाल दें. But if they declare before they reach 350, then I think Pakistan will go for the chase. No, but I don't think they will. They can, but it's they won't declare before 350. Pakistan when you know you rule them out, that's when they suddenly start performing. So it's going to be tough to say. बिल्कुल यही कहूंगा, क्योंकि देखो पाकिस्तान है, कोई पता नहीं भाई उसका. अच्छा, दूसरे आप याद रखो कि बैटिंग कोच जो है वो यूनुस खान है पीछे, ठीक है? तो मेरा ये ख्याल है, और knowing यूनुस खान and knowing Rizwan a little bit, they'll go for it. उनको सिर्फ हेल्प चाहिए शुरू ऊपर के 3-4 बंदों से. अजहर अली, आबिद अली, शान, आपके जीशान, अपना यार दूसरा ओपनर कौन है हमारा, शान मसूद ने स्कोर कर दिया, और हारिस सोहेल 25-30 भी कर गया. देखो हारिस सोहेल की एक बात है तमाम कि अगर वो 20-25 करेगा ना तो फिर वो 70-80 करेगा, वो बीच में नहीं रुकेगा. तो ये 3 लड़के, उसके बाद फहीम अशरफ अपना सीता है, और रिजवान भी करेगा, फवाद भी. मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान एक टफ फाइट देगा. न्यूजीलैंड को हमेशा खतरा रहता है पाकिस्तान से, और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं. दिस इज हाउ लेजेंड्स आर मेड. तो आज इनके पास टाइम है, शान मसूद के पास, इनके पास कि वो कुछ कर सकें. तो बंडल आउट हो गया, वही हिट कर रहा था. लेथम तो स्लो खेल रहा है, विलियमसन भी स्लो खेल रहा है. तो आई थिंक डिक्लेरेशन शुडंट बी फार अवे.
And also to add to Farrukh Bhai's point about Yunus Khan, before we were talking about the chase, the 382 we made against Sri Lanka, Yunus Khan and Shah Masood were batting together, and Shah Masood said that Yunus Khan was the one pushing, we should go for the win, we should go for the win. And it was not like a senior decision by the coach or captain. It was, they were at the wicket, and Shah Masood was saying Yunus Khan was a senior batsman. He saw the pitch and he said, we can score these runs, and that's why they started playing aggressive. So with Yunus Khan as batting coach, he could give that advice to the youngsters, or like to Shah Masood and Abid and others, to play the shots but play on merit. Yeah. Because like सिद्धार्थ भाई और सुल्तान दोनों मैनेजमेंट में रहे, तो ये इस बात को करेंगे कि जो ग्राउंड में जो हो रहा था ना, वो मैनेजमेंट की मर्जी से नहीं हो रहा था. जो दो लड़के खड़े होते हैं, आप भले जितने भी ग्लव्स भेज दो, पानी भेज दो, वो अपने दिमाग से खेल रहे होते हैं. तो मेरे ख्याल में दे विल गो फॉर इट. थोड़ी सी हेल्प चाहिए यार. 7-8 अगर उसको मिला लें ईशान को, तो 8 नंबर तक आपके पास बैटिंग है. यासिर शाह ने फॉर्म आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, क्या जान लोगे क्या? मैं कुछ ना कुछ तो कर ही सकता है. आई वेरी पॉजिटिव. और कुछ चले फर्रुख भाई, टाइम तो हो गया है खत्म. मैं जाने से पहले कमेंट लूंगा, उसके बाद फिर मैं सबको पहले तो मैं थैंक यू कह दूं. आज साद एंड नसर, यू गाइस ज्वाइन एंड आई होप दैट यू गाइस विल कंटिन्यू टू पार्ट ऑफ आवर पैनल. अरहम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. तुम्हारी तबीयत खराब चल रही है, लेकिन आई होप गेट वेल सून और ज्वाइन करो हम लोगों के शो को रेगुलरली. थैंक यू सज्जाद भाई एंड सुल्तान भाई फॉर बीइंग ऑलवेज बी ऑन द शो एंड गिविंग योर व्यूज. एंड थैंक यू फर्रुख भाई, आप आए और आपने थोड़ी सी चार चांद लगाई और आपने अरमान कपूर को हैप्पी बर्थडे बोला. बिल्कुल बिल्कुल हमारे भैया. और थैंक यू प्रिंट नेशन अगेन फॉर दिस लवली हुडी. और लोगों को भी दें, हमारे लोगों को यानी कि, और शुक्रिया का मौका अदा करें. और आज इन्होंने एडवर्टाइज कर दी और अब ये सारे हम लाइन पे हैं, वेट कर रहे हैं इन हुडीज का. जी अरहम, कुछ कह रहे हैं? लास्ट टाइम पाकिस्तान हैमिल्टन में जब टेस्ट खेला था, लास्ट सेशन में 9 विकेट्स लूज कर गया था. तो अरहम अभी तो 5 सेशन बचे हैं. अभी तो 3 सेशन कल के और 1 सेशन टी के बाद बैटिंग करेगा. तो अभी तो लेट्स सी क्या होता है. कल जब मतलब रीग्रुप होंगे तो आई होप पाकिस्तान उस वक्त बैटिंग कर रहा हो. इंशाल्लाह व्हेन वी आर गोना रीग्रुप टुमारो सेम टाइम, आई थिंक लंच, आई होप आई प्रे पाकिस्तान उस वक्त बैटिंग कर रहा हो. थैंक यू अहमद अकबर और सबके लिए जो किया. एक चीज क्योंकि लोग देखेंगे, प्लीज कंफर्म कर दें टाइम का कल जो लोग वर्चुअली कनेक्टेड है. I mean we will try our best कि हम लोग 7 बजे का शो ही करें, क्योंकि 4 बजे वीकडे स्टार्ट हो गए हैं, सबकी जॉब चल रही है. तो शाम 7 बजे का, जो कि पाकिस्तान के सुबह के 5 बजे, और जब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के टेस्ट में जब लंच टाइम होगा, तो डेफिनेटली हम लोग वही टाइम पे शो करेंगे. आई होप एवरीवन. जबकि इस गेम को पसंद किया हमादुद्दीन ने भाई, मैक्स जेफ सीट भी बेचता है, इससे कांटेक्ट कर लो, तुम्हें पहुंचा देगा सीट. या बिल्कुल. थैंक यू चलो गाइस, आई होप सब stay रहो, safe रहो, और इंशाल्लाह ताला कल बात करें. Thank you everyone and then see you tomorrow. बिल्कुल.